जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣੇ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਉਪਾਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਉਪਾਏ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਤ। ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ। ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੌਰੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਹਿ ਗਈ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਉਹ ਪੰਡਿਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2 ਘੰਟੇ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿਤਾਬ, ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿਤਾਬ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ 15 ਦਿਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਦੇ 15 ਦਿਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ, ਕਦੇ 15 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਕਦੇ 15 ਦਿਨ ਕੁਛ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੰਨਤਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਖਰਾਬ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 2 ਕਪਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਬਾएं ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਕਰ। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵਧਣਾ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ PhD ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਵਲ ਦਰਜੇ 'ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ PhD ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਦੋਂ PhD ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हर दिल की बात जान जाते हो गुरुपा, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। 7 तारीख आपने मुझसे कन्या पूजन भी करवाया गुरुपा। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, बट आपने सब कुछ आपने ही किया गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद जब भी मंडे आया तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि आज छुट्टी लेनी चाहिए, और फिर मैंने मैसेज डाल दिया कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी करके, और मैंने एक पर्सनल लीव ले लिया। लीव लेते ही फिर मेरी बेटी बोली कि चलो मम्मी अपन गुरुजी के आश्रम जाते हैं। मेरा ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था गुरुपा, बट आपने ही ये सब कुछ किया है गुरुपा। बट उसी दिन मतलब 7 अप्रैल मंडे के दिन पता नहीं मॉर्निंग में मैं हॉल साफ़ करी थी। किचन तो साफ़ हुआ था पर मैं हॉल साफ़ करने लगी थी, वो भी आपने ही करवाया गुरुपा। और मैंने किचन हॉल अकेली ने साफ़ किया, बट मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं पेन हुए गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो मैं पहले जब भी घर साफ़ करती थी तभी मेरे दोनों हाथ इतने पेन होते थे कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी, क्योंकि बहुत पेन होता था। बट आपकी दया की वजह से मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। वो आपने ही करवाया गुरुपा, पूरा घर आपने ही साफ़ करवाया। फिर उसकी मैंने बात सुनी, और मेरा दिल में भी ये इच्छा थी कि गुरुजी के आश्रम जाते हैं, और अचानक से प्लान बन गया। फिर मेरे बेटा और बेटी के लेकर, आंटी और छोटे अंकल को लेकर मैं आपके मुंबई के आश्रम में आई, और मैंने शांति से उधर नतमस्तक हुआ। हमें समोसा और कड़ा प्रसाद का प्रसाद मिला। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत मेहर करते हो गुरुपा, बट हम ही हैं नहीं समझ पाते। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अगर सत्संग बोलते समय मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और फिर वो लंगर प्रसाद लेने के बाद हम थोड़ा देर बैठे हैं आश्रम में, और पता नहीं उधर एक सेवादार अंकल थे। उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास स्वरूप नहीं है? मैं बोली नहीं। तो आप कैसे कनेक्ट हुए? तो फिर मैंने बोली मैंने नहीं, मेरे गुरुपा ने मुझे कनेक्ट किया है। पर मैं महादेव को बहुत बहुत मानती हूँ, और मुझे बहुत प्रिय है महादेव, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बहुत समझाया है। हर पल हर वक्त हर सेकंड में उन्होंने मुझे सहारा है। पता नहीं मैंने क्या बुरे कर्म किए हैं गुरुपा, और किए थे, बट मेरे महादेव ने, मेरे साक्षात ईश्वर ने सब कुछ नष्ट कर दिए, और बहुत अच्छे कर्म में वो कन्वर्ट कर दिए। और भक्ति मार्ग पे इतना इतना अच्छा लगता है ना गुरुपा। बहुत बहुत सुंदर अच्छी फीलिंग है, मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ मैं गुरुपा। फिर वो सेवादार ने बोला नहीं, आपके पास एक स्वरूप तो होना ही चाहिए करके। फिर उन्होंने
एक अंकल से कहा और फिर वो अंकल ने मुझे ब्रेसलेट्स दिए और आपके स्वरूप दिए बहुत सारे, और फिर मैं लेके आई गुरुपा। अभी तक मैंने आपका स्वरूप फ्रेम नहीं करवाया है, बट आप ही सब कुछ करवाओगे मुझे पता है गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप आए हो गुरुपा, बरकत बरकत ही बरकत है गुरुपा, मेरे घर में सुख शांति है। धन्यवाद गुरुपा, आपने मुझे ये काबिल समझा कि मैं आपकी भक्त बनूं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा फिर भी कम है गुरुपा, बहुत बहुत कम है गुरुपा। मेरे भोलेनाथ, मेरे साक्षात महाशिव, आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत नमस्कार और बहुत 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 प्रेम गुरु। मैं तो ईश्वर जैसा ईश्वर बहुत प्रेम करता है अपने भक्तों पे, पर हम ही लोग नहीं समझ पाते हैं, स्वार्थ आ जाता है गुरुपा। ये स्वार्थ के प्रति हमें भगवान का जो महिमा है ना, और भगवान का जो प्रेम है वो हमें नहीं समझ पाता है। बट आप बहुत बहुत प्यार करते हो और बहुत बहुत ब्लेस करते हो गुरुपा। आप तो मेरे साक्षात महाशिव हो गुरुपा। मैंने पुण्य कर्म किए हैं, इसके लिए गुरुपा आपने मुझे कनेक्ट किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जैसी भी हूँ, भली हूँ बुरी हूँ, बट आपकी भक्ति मुझे वरदान दो गुरुपा। दिल में आपकी भक्ति बढ़ती और बढ़ती ही रहे गुरुपा। भक्ति से मन में शांति मिलती है गुरुपा, और जीने का एहसास निर्माण होता है। आपके वजह से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ है गुरुपा, बहुत बहुत खुशियाँ है। इसके लिए मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता गुरुपा, बट आपके वजह से ही मेरा सब कुछ बहुत बेहतरीन से बेहतरीन है गुरुपा, बहुत बेहतरीन है। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा। अगर मैं कहाँ पे गलत हूँ तो मुझे बताना गुरुपा, मुझे उधर ही रोक लेना गुरुपा। आपको जैसी मैं पसंद हूँ आप मुझे वैसे ही करना। आपको जैसे लग रहा है मेरे लाइफ में जैसी चलना चाहिए वैसे ही मेरी लाइफ चलाना गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पे सेंडर कर दिया है गुरुपा। मेरी बुद्धि, मेरे हर एक अवयव आपको, आप पे समर्पित है गुरुपा, क्योंकि आपने ही दिया है। मेरी हर एक सांस आपके वजह से ही चल रही है गुरुपा। आपने बहुत गंदे गंदे मारण क्रिया सत्संग सुनवा के शुक्राना करके ही कटवा दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे माँ की भी निगेटिविटी आपने 99% ख़त्म कर दी है, बस 1% है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो पहले मम्मी के साथ, मेरे खुद के माँ के साथ रहना भी बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था, बट आपके पॉजिटिविटी और आपके मंत्र जाप, जल प्रसाद, चंदन टिका, उसके वजह से मेरे में दृढ़ आत्मविश्वास निर्माण हुआ है गुरुपा। और मुझे पता है मेरे गुरुपा है, वो सब कुछ देख लेंगे, वो सब कुछ, उनको सब कुछ पता है। आपने मुझे इतना ब्लेस किया, आपका नंबर 7 और ऊपर से उसमें मंडे, मतलब इतना अच्छा लगा ना मुझे बहुत ब्लेस लगा गुरुपा, बहुत ब्लेस लगा। अगर कोई ना हो तो मेरे गुरुपा है, मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती हो क्षमा करना गुरुपा। अगर कोई हस्बैंड अंकल कोई आंटी को नहीं समझ पाते, और आंटी भी अपने सांसारिक रूप में खुद को बहुत ढाल रहती है गुरुपा, बट खुद के लिए कुछ नहीं सोच पाती है, खुद के लिए कुछ करे, अच्छा करे, अच्छा उसको जॉब करना है तो वो जॉब करे गुरुपा, और उसको अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा करना है वो अच्छा कर पाए गुरुपा, अपना सांसारिक भी करके, और ये भी उसको आप ब्लेस करना गुरुपा। मतलब कैसे हस्बैंड अंकल भी आंटी को समझे और वो भी उनके साथ हाथ बटाए, तो उसके भी जो बर्डन्स रहते हैं वो कम हो जाएंगे गुरुपा, और वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाएगी। क्योंकि कभी कभी जो आंटी लोग होते हैं ये संसार के इसमें खुद को ही ढाल देती है और खुद को भूल जाती है गुरुपा, बट उनमें भी एक अस्तित्व है और वो भी कुछ कर सकती है गुरुपा। अगर सबने उसको साथ दिया और कुछ अच्छा किया तो एक आंटी बहुत कुछ कर पाएगी गुरुपा। बस ऐसे ही आप आंटियों के साथ रहना, सत्संग परिवार के साथ रहना, छोटे बच्चों के साथ रहना, बूढ़ों के साथ, अंकल आंटी के साथ, और जिसको बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं,
जिसको हाथ नहीं है, जिसको आँखें नहीं हैं, जिसको प्रॉब्लम्स हैं, उसका आप ही केयर लेना गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती होती है सत्संग बोलते समय तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे पितरों से भी, मेरे कुल स्वामिनी से भी, मेरी माता रानी से भी, मैं आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, सत्संग परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत ब्लेस किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपके आश्रम में आते सब जय गुरु जी का नारा देते हैं ना गुरुपा, वो भी बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ये कलयुग में भी आपने मुझे सत्य युग दिखाया गुरुपा, और बहुत ब्लेस फील किया है, और ऐसे लगता है ये अलग ही दुनिया है, बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है जिसका मैं बयान ही नहीं कर सकती गुरुपा। भला हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ, मैं आपका भक्त हूँ गुरुपा, बस आपकी भक्ति मुझे वरदान दो गुरुपा। हे त्रिनेत्रधारी, हे त्रिनेत्रधारी मेरे प्यारे ईश्वर, ऐसी अंग संग रहना। अगर मेरे भक्ति में आपको कुछ कम लग रही होगी तो गुरुपा बता देना, बट हमेशा हमेशा ऐसे ही रहना और ऐसे ही प्यार करना गुरुपा। मुझसे कुछ गलती हुई क्षमा चाहती हूँ मैं गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी डिवाइन चैनल पे सभी संगत के साथ साझा कर रही हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं अपने प्यारे से गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप सभी संगत के साथ बोलना चाहूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज हनुमान जयंती है और गुरु जी ने आज सत्संग में बुलाया, तो ये गुरु जी ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी सत्संग में जाने की। और गुरु जी ने पूरा पूरा सत्संग में अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया मुझे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सत्संग पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, थक गई थी मैं काफ़ी कि मैं सत्संग में जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि सत्संग था 4 बजे का। और सॉरी 4 बजे का नहीं, सॉरी संगत जी, सत्संग था 2 बजे का, और मैं 2:30 बजे तक मैं घर में थी और काम कर रही थी, वर्क कर रही थी घर का ही। तो संगत जी, मन में थकान बहुत थी, कल की भी मेरे को थकान चढ़ी हुई थी और आज की भी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। और सुबह से वो मतलब ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा थका, अगर मैं घर पे रुकती तो संगत जी मैं बिस्तर पे जाते ही एकदम सो जाना था मेरे को। तो लेकिन मेरे को जब गुरुजी बुलाते हैं सत्संग, मेरे को बहुत दिनों से मन था जाने का सत्संग में, कोई सत्संग छोड़ना पसंद नहीं करती गुरुजी का। तो गुरुजी मन में डाला कि नहीं तेरे को सत्संग में आना है ना। तो संगत जी, गुरु जी के सत्संग में पता नहीं क्या बात है, मैं काम में घिरी रहती हूँ क्या है, गुरु जी पहले पहुंच जाते हैं, हमेशा मेरा वेलकम बैंड निकल जाता है और मैं पीछे बाद में आती हूँ। मेरे को गुरु जी माफ़ कर दो, हमेशा वेलकम बैंड अटेंड नहीं कर पाती, हमेशा आपके बाद मतलब आप आ जाते हो, मैं बाद में ही आती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों की माफ़ी दे दो, क्योंकि गुरु जी हमेशा विद्यमान ही होते हैं और मैं मोस्टली अधिकतर लेट ही जा पाती हूँ, क्योंकि काम जी काम में लगी रहती हूँ। कई बार मन ठीक नहीं होता, कई बार फिर धीरे धीरे काम होता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। कल संगत जी, तो आज मेरे को मतलब प्रॉब्लम भी थी, मेरे को हेल्थ इशू था कोई मेरे स्टमक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी और मेरे बहुत दिक्कत थी स्टमक में। आप जब समझ सकते हैं, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। गुरुजी को मैंने वो चीज़ बताई और गुरुजी को पूरा पूरा एहसास था। तो मैं सोच रही थी पता नहीं इस चीज़ के लगे मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ संगत जी, सत्संग के अंदर। तो मैं सोच रही थी जाऊँ या नहीं जाऊँ संगत जी सत्संग के अंदर। तो मेरे को ये मतलब वो बनी हुई थी,
तो संगत जी आज मुझे हेल्थ इशू था, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था और मुझे चक्कर भी फील हो रहे थे, थकान भी बहुत ज़्यादा थी। गुरुजी को मैंने सारी बातें शेयर करी थी और गुरुजी का सत्संग का इनविटेशन भी आया हुआ था। गुरुजी चाहते थे मैं वो सत्संग अटेंड करूं। तो और 2:30 बज गए थे, 2 बजे सत्संग स्टार्ट हो गया था। जाने में भी कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता, या 20-25 मिनट तो लगते हैं मुझे जाने में। ज़्यादा दूर भी नहीं था और ज़्यादा पास भी नहीं था, रिक्शे से जाता, लेकिन मैं सामने इजी वे में 15-20 मिनट में आ जाता। तो मैं पैदल जाना पसंद किया फिर भी मैंने। तो जैसे गुरुजी की इच्छा, तो गुरुजी ने जाते ही जैसे घर से निकली तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलने लग गई थी। 777, 777, 55, मतलब इस तरह की गुरुजी 66, 666, गुरुजी इस तरह से ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दी गुरुजी ने। तो वहां तक रास्ते तक गुरुजी की मेरे को स्पेशल ब्लेसिंग मिलती रही। और फिर जब तक सत्संग तो सॉरी गुरुपा स्टार्ट हो गया था और मैं हमेशा लेट करती हूँ, तो गुरुपा मुझे गलती की माफ़ी देना। और फिर जब मैं वहाँ पे बैठी तो गुरुजी का बहुत अच्छा सत्संग चल रहा था। मैं चुपचाप जाके बैठ गई गुरुजी के चरण स्पर्श करके। और मतलब अंदर से काफ़ी मैं टूटी हुई हूँ, मतलब दुखी। काफ़ी सारी रीज़न ऐसे हैं, मेरे पति अंकल और मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा एक एक तरह से साइलेंट सा आ गया है। पता नहीं क्यों, गुरुजी के होते हुए है या कैसे हुआ है, गुरुजी को सब पता है। क्यों संगत जी क्या ये कहते हैं, अगर मैं गुरुजी की पूजा अर्चना वगैरह करती हूँ तो इनको प्रॉब्लम होती है। और वैसे मना तो नहीं करते, जानना जाने को मना करते हैं, ना सत्संग अटेंड करने को मना करते हैं, बट फिर भी इन्हें ये लगता है कि ये पूजा क्यों करती है इतनी। और गुरुजी, जब गुरुजी साथ में होते हैं ना तो मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि पूरे दिन मेरे को घर पे अकेले ही रहना होता है और काम करने के बाद मुझे अकेलापन नहीं फील होने देते गुरुजी। और क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें गुरुजी ने बताई है, तेरे चारों बहुत ज़्यादा सराउंडिंग नेगेटिव एनर्जी, तो उन चीज़ों से मुझे बचा के रखते हैं। गुरुजी ने मेरे एक तरह से रक्षा कवच बना दिया है। कई बार मुझे फील होता है बटरफ्लाइज दिखती हैं आगे, पिजन्स दिखते हैं, जब भी मैं देखती हूँ तो पूरा का पूरा झुंड का झुंड मेरे सर पे से जाता है पिजन्स का। और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी मुझे ये बताते हैं तू फिक्र ना कर, मैं तेरे अंग संग ही हूँ। इस तरह की ब्लेसिंग्स देते रहते हैं गुरुजी और मुझे फील होता है। तो मैं जब सत्संग में बैठी तो मन एक मेरा बहुत ज़्यादा उदास हो गया और मतलब रोने लग जाती हूँ संगत जी। मेरे को पता नहीं क्यों रोना आता है, हर सत्संग में मेरे को रोना आता है और मैं रोने लग गई। कुछ सोच सोच के, मतलब ऐसे ही रोना रोना निकल जाता है संगत जी मेरा। तो संगत जी जहाँ मैं बैठी थी, तो मैं नीचे फर्श पे तो बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, मैं थोड़ा बेड पे बैठी जहाँ गुरु जी का स्वरूप था। और हाँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे वही चुन्नी पहनाई जो गुरु जी ने खुद अपने चोले के साथ पहन रखी थी, डिट्टो वही कलर था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैं सामने बैठी तो वहाँ मेरे ऊपर गुरु जी मतलब मेरे हनुमान जी का स्वरूप मेरे सर पे ही लगा हुआ था और साइड में मेरी माता रानी थी, तो हनुमान जी माता रानी के साथ थे और सामने गुरु जी और मेरे भाई गुरु जी थे और घाटी श्याम बाबा जी भी थे। तो जब मेरे को रोना आ रहा था तो यह क्या, मेरे को ऐसा लगा गुरु जी के वो स्पर्श की गर्माहट वो मैंने महसूस करी। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी और हनुमान जी के रूप में आके मेरे को मेरे सर में वो गर्माहट दे रहे, क्योंकि मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे अब कहा कि तू फिक्र ना कर, क्योंकि मैं रो रही थी, फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो ये चीज मुझे फील हुई, आशीर्वाद उनका मेरे साथ है, तो ये चीज मुझे फील हुई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी कहने वाली बात नहीं है, उनके उस स्पर्श को, गुरु जी के हाथ के स्पर्श को हम फील कर सकते हैं। जो वाइब्रेशन होती है ना, वो हमें फील हो जाती है। ये मेरे लिए चमत्कार से या कृपा से बहुत कम, हम चमत्कार नहीं बोलेंगे, गुरु जी की कृपा थी जो उन्होंने मुझे फील कराई। मुझे स्पेशल फील हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ मैं रो रही थी वहां चुप हो गई और फिर मेरे को गुरु जी के जितने अच्छे भजन चले मेरे काफी मन लगा। फिर उसके बाद ये वाला सत्संग मैंने संगत के साथ भी शेयर करा और बहुत सारी संगत ने अपने अपने भी सत्संग सुनाए, तो बहुत अच्छा लगा। और संगत जी वहां से गुरु जी के सत्संग में से मेरे को एक बड़ा वाला लॉकेट स्वरूप मिला और गुरु जी का छोटा वाला स्वरूप मिला, पिंक चोले वाला गुलाबों के अंदर, और पीछे चरण स्वरूप भी थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने काफी सारी ब्लेसिंग्स दी और मेरे को अपने होने का भी एहसास कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा था मेरा, बहुत बड़ा कष्ट काटा था पक्का। तो गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटा तेरे को नहीं पता तेरे पे कितना बड़ा कष्ट है, बेटा तेरे को नहीं पता तेरे पे कितना बड़ा कष्ट है, तुझे नहीं पता तेरे पे कितना बड़ा कष्ट है। बार बार इस तरह के मैसेज गुरुजी मुझे दे रहे थे। अब मुझे नहीं पता संगत जी, ना मैं गुरुजी के संकेतों को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाती, ना मैं ये उपाय वगैरह कर पाती हूँ।
मुझसे नहीं होता, ना मैं कर पाती। गुरुपा मुझे माफ़ करना, मेरे आप बस अंग संग सहाय रहो। आप हो ना, मेरे को नहीं समझ आता कोई उपाय वगैरह का। आप ही बस देखो, बस मेरे को समझ में नहीं आता। कई बार मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, थक भी जाती हूँ, नहीं होते मेरे से उपाय। और कई बार मतलब दिमाग से भी उड़ जाता है, बहुत थक जाती हूँ। और इस वक़्त भी संगत जी मैं बहुत थक रही हूँ, मेरे को आँखों में नींदें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, मेरा सर घूम रहा है, लेकिन गुरुजी के सत्संग इतने आते हैं कि मैं स्किप नहीं करना चाहती। और बस गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, और उन आंटी ने सबको ब्लॉकेट दिए, और सबको छोटे वाले स्वरूप, चरण स्वरूप लैमिनेट और चरण स्वरूप गुरुजी का स्वरूप मिला। सभी सारी संगत बहुत खुश हो गई, और वहाँ पे गुरुजी ने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, खीर प्रसाद, और वो क्या बोलते थे, खांडवी और बूंदी, और मतलब सब कुछ गुरुजी ने ब्रेड पकौड़ा सब खिलवाया। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, और गुरुजी के नाम का, हनुमान जी के नाम का केक भी काटा गया, बर्थडे केक भी काटा गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छा सत्संग हुआ जहाँ गए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लगा। तो गुरु पर बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह से अपने बिटिया को अपने आप से कनेक्ट रखिए, कष्ट काटते रहिए, क्योंकि गुरुपा अगर मेरे पे कोई कष्ट भी है ना, और कोई मैं फील भी कर रही हूँ, वो मैं 10% ही फील कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं तो तेरा 90% तुम अपने ऊपर ले लो। तो पक्का गुरु जी ने 90% अपने ऊपर ले लिया होगा, पक्का ले लिया होगा। 10% ही मैं झेली हूँ, उसमें मेरी हालत खराब हो गई। और संगत जी बहुत ज़्यादा कई बार मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, काफ़ी सारी, क्योंकि सब कुछ सही करते करते, सब कुछ संभालते संभालते फिर भी मुझे ब्लेमिंग्स मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा दिल टूटता है, कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन तो दूर की बात, जहाँ पहले मुझे अप्रिशिएशन मिलती थी, वहाँ अब मेरे को डाउन फील कराया जाता है, और सब कुछ करने के बाद वैसी ही चीज़ें फिर भी उसके बाद, तो कई बार बहुत अजीब लगता है, दिल टूट जाता है। और कई बार गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, तो गुरु पर मैं तो बहुत बहुत शुक्राना, जो आप दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। तो कई बार मैं सुम हो जाती हूँ संगत जी, कोई खुशी भी आती है ना, तो मुझे हंसी नहीं आती, मतलब फील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गुरुजी बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करे। तो मैं सम इंसान होता है ना, मतलब ना खुश है ना दुख, ऐसा कोई दुख भी आए तो सम, कोई खुश भी आए तो सम। इस तरह के मेरे साथ एक्टिविटीज़ हो रही हैं अब, इस तरह से मुझे फील होता है, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगने लगा है। वो सब गुरुजी की कृपा है संगत जी, बहुत ज़्यादा गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बस मैं अपने गुरुजी का अंतम अंतम शुक्राना करती हूँ। और बच्चों की साइड से शुक्राना, गुरुजी कहते तेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया है मैंने, दोनों बच्चों को, तेरे पति अंकल को ब्लेस कर दिया, उनके काम में बहुत तरक्की होगी। और गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चे बहुत पढ़ेंगे। और गुरु पर सभी के बच्चों को सत्संगति देना, सभी के बच्चों को बुराइयों से बचा के रखना, सभी के बच्चों का भविष्य उज्जवल करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पर अपनी बेटी को अपने चरणों से लगाए रहना, सभी संगत का भला करना, जानवरों पक्षियों का भी भलाई करना गुरु पा। और अपना भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत 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 स्पेशल हैं। आप हमारे गुरु पा हैं, साथ में हमारे शिव जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अब मैं अपना आपका सत्संग आगे बढ़ाती हूँ प्यारे से मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ आंटी, ये सत्संग प्लीज़ मेरा शेयर कर देना, गुरु जी प्लीज़ शेयर करवा देना। थैंक यू सो मच, शुक्राना जय गुरुपा, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरुजी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, जय संगत जी। आज अप्रैल 13 तारीख है, 5:11। अमृत वेला का ही समय है। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए ही मोबाइल हाथ में रख के गुरु जी के सामने दीपक जला के नहा धो के पूजा पाठ के लिए बैठी हूँ। पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, उसके बाद मंत्र जाप और सिमरन करूँगी गुरु जी महाराज।
हाँ, मैं रोज ही सुबह शाम शिव चालीसा बिन बोले या सिमरन जो है और एक माला आपके मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी महाराज। और क्या करूँगी गुरुजी महाराज, सब सत्संग आते रहते हैं तो वही सुनती हूँ। खाना पकाते उठते बैठते खेतों में जाती हूँ तो वाईफाई का वो नहीं है, कभी कभी डाउनलोड करके ही ले जाके खेतों में भी सुनती हूँ गुरुजी महाराज। खेतों में काम करते करते भी डाउनलोड करके ले जाती हूँ। तो कई गुरुजी के मैसेज में होता है तो सत्संग पूरा नहीं सुनती, अधूरा ही छोड़ देती है। नहीं गुरुजी महाराज, मैं डाउनलोड करके खेतों में सुन लेती हूँ। कभी कोई बात की समझ में नहीं आती तो फिर रिपीट भी कर लेती हूँ। गुरुजी का जो वचनों के पालन में ही चलने का एक आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ मैं भी, लेकिन अनजान अनाड़ी हूँ। पूजा पाठ कभी कभी गुरुजी के उसमें सत्संगों में उपायों और जो कुछ उपाय बताते हैं, मेरे पास सामान घर में नहीं होता है, बाजार थोड़ा दूर होता है, लेट ही करती हूँ पर करती ज़रूर हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नहीं किया है, हनुमान जी का मंदिर भी नज़दीक नहीं मुझे दिखा है इधर, तो हनुमान जी को पान के पत्तों से बीड़ा हनुमान जी के उसमें चढ़ाना, और तेरे शरीर से जो तेरे शरीर में नेगेटिविटी है वो हनुमान जी ही तेरे कष्ट दूर कर सकते हैं। 11 पत्तों पे राम राम लिख के माला बना के हनुमान जी को माला पहनाना है, वो भी नहीं कर पाई हूँ। और शीतला माता के मंदिर भी इधर नज़दीक कहीं मुझे नज़र ही नहीं आया। पीली चुन्नी और लस्सी चढ़ाने का ये काम मेरा अधूरा है गुरुजी महाराज, इसलिए मेरे काम नहीं बनते हैं। शायद काम तो नहीं बनते हैं ये बात नहीं है, बहुत काम बन चुके हैं मेरे, बनेंगे। मैं गुरुजी की ही आशा में हूँ। गुरुजी ने जो पत्थर की लकीर है, जो बोल देंगे वचन तो पत्थर की लकीर है बोलते हैं, तो मैं गुरुजी के ही आश्रय में हूँ। जो कुछ करना है गुरुजी को करना है। माँ भी तू, प्यो भी तू, सारा ही साडा यार भी तू, साडा प्यार भी तू, तेरे आश्रय गुरुजी असी बैठे हुए। हाँ गुरुजी महाराज, मुझे थोड़ा नहीं आता है पंजाबी, बहुत प्रयास करती हूँ 2-4 शब्द बोलूँ तो नहीं होता है। हाँ गुरुजी, आप ही है जो कुछ करना है। जब मैं कितनी पीड़ा दुख में थी तो आप ही ने मेरे हाथ पकड़ा है, तो वो समय को कैसे भूल सकती हूँ मैं गुरुजी महाराज, आपको नहीं भूलूंगी बेटी। उठते बैठते सोते हर वक्त गुरुजी गुरुजी होता है गुरुजी महाराज मेरे उसमें। गुरुजी महाराज, मैं दिव्य मंत्र बोलना भूल गई हूँ, सो अभी बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय संगत जी। गुरुजी का एक मैसेज था, जो तेरा है वो तेरा मिल जाएगा, आज ही नहीं तो कल तेरे पास खुद चल कर आएगा। चिंता मत कर, ना तो तेरे कर्म ना तो तेरा रोना व्यर्थ जाएगा, पर अब तू रोना बंद कर, तेरा वक्त नया आएगा। जय गुरु जी। हाँ गुरु जी महाराज, खुशी तो थोड़ी थोड़ी आनी शुरू ही हो गई है गुरु जी महाराज। लॉकडाउन जब से लगी है ना, तब से मेरी खुशियों में थोड़ी कमी आ गई थी, और ये फाइनेंसी, ये लॉकडाउन के कारण ही सब संसार को फाइनेंसी की कमी हुई है गुरुजी महाराज। लॉकडाउन के कारण ही हुआ है, सब संसार को ही हुआ है, मुझे नहीं सबको हुआ है। जो जो अपने भाग में पड़ा है उसको तो निभाना ही होगा गुरुजी महाराज। सो
आप साथ में हो तो डरना किस बात का। मैं पवित्र आत्मा हूँ, निडर हूँ, नहीं डरती। मैं गुरु जी की शेरनी बेटी हूँ, संघर्ष करती जाऊंगी। गुरु जी महाराज कर रही थी, करूंगी। आप ही के दिए वचनों का पालन करूंगी। गुरु जी महाराज उठते बैठते सोते जागते गुरु जी है। गुरु जी महाराज और क्या कहूँ। गुरु जी महाराज हाँ, कभी कभी गुरु जी महाराज मैं गुरुवार को और सोमवार को ही अच्छा खाना बना के भोग लगाती हूँ। और दिन तो गुरु जी महाराज हमारे यहाँ चावल की खेती ज्यादा होती है, तो सुबह शाम ही चावल खाने का नेपाली लोगों को जो नियम है वही मेरा भी वही हाल है। गुरु जी महाराज रोटी पकाते कभी देर हो जाती है, चावल बनाना बहुत जल्दी हो जाता है, चावल ही बना लेती हूँ। अकेली हूँ तो सुबह का शाम को भी खा लेती हूँ, शाम का अगले दिन भी खा लेती हूँ। इसके लिए क्षमा चाहूंगी गुरु जी महाराज। बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं खा लेती हूँ। फेंकने से अच्छा खाना अच्छा होगा बोल के मैं खा लेती हूँ। और मेरे यहाँ आसपास जितने भी चिड़िया आती हैं तो उनको भी भाग में लगा के रख देती हूँ। चिड़ियों के लिए एक कटोरे में पानी और खाना भी रख देती हूँ। कुत्ते भी 2-3 कुत्ते आते हैं, खाना व्यर्थ फेंकने से अच्छा तो एक बर्तन उसमें साइड में रख देती हूँ जमीन पे ही। तो एक 3-4 कुत्ते आते हैं, खा लेते हैं। गुरु जी महाराज जी मैं तो जानवर को सेवा तो 2 बिल्लियां तो मेरे घर में ही रहती हैं, मेरे साथ ही। एक कभी सो जाती है मेरे साथ ही सोती है, कभी तो बिल्ला नहीं सोता, बिल्ली तो आके सो जाती है। गुरु जी महाराज हाँ, गुरु जी महाराज जानवरों से बहुत ही प्यार है, लगाव है मुझे भी। लेकिन मेरा एक घर बनाने का जो सपना है वो जल्दी तो नहीं हो पाएगा गुरु जी महाराज, क्योंकि फाइनेंस से जो उधार लिए हुए पैसे चुकता करने का अभी बाकी है। 8-10 लाख रुपया बाकी है अभी भी। कम तो हो गया है, लेकिन अभी दिवाली तक मेरे हस्बैंड अंकल आ जाएंगे ना। एक फार्म हाउस बनाने का विचार कर रही हूँ। एक कमरे में अपने आप रहने का, एक कमरे में थोड़ा गाय वस्तु कुछ पाल के। खेतों के लिए मल भी चाहिए होता है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के कई मैसेज में तो कुछ कर तो सही, तो आगे तो बढ़। कैसे बढ़ो गुरु जी महाराज, फाइनेंसी की लॉस, घर में कुछ करने की। दूसरे के घर में रहती हूँ, लेकिन जो भाई के घर में रहती हूँ वो मेरा रेंट नहीं लेते हैं, बस लाइट बिल पानी का बिल भरना पड़ता है, रेंट नहीं लेते। क्योंकि इधर भी इनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो जिस घर का मालिक है वो बोलते हैं, मेरी बीवी भी थोड़ी नासमझ है, छोटी बच्चे के साथ अकेले रहने के लिए थोड़ा डरती है। आप बूढ़ी बूढ़ी एकदम पक्की औरत है जो संभाल सकती हैं। इधर बैठ जाइए, रेंट मत देना, इन बच्चों को भी ख्याल रख देना। मेरी जो बहू है और मेरी बीवी है थोड़ा नासमझ है, थोड़ा डांट फटकार भी लगाना, काम करने का तरीका सिखाना। तो इसीलिए ही उन्होंने कमरा दिया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। ये सब आप ही का है। मैं भी अपना पुराना घर है ना, किसी को रेंट के बिना ही दिया है गुरु जी महाराज। एक रेंट में बैठा हुआ है 2500 रेंट देने के लिए, वो भी रेंट नहीं दे रहे हैं, नक्सड़ी करते हैं। घर बहुत दूर है गुरु जी महाराज, उधर भी नहीं गई हूँ मैं। इधर मायके में ही रहती थी, मम्मी पापा का सेवा करके। मम्मी पापा गुजर जाने के बाद ही गुरु जी महाराज मैं अकेली थी, तो ही आपने मुझे हाथ पकड़ा है गुरु जी महाराज। रोती रहती थी अकेले बैठ के। मायके का जो घर था वो मेरे छोटे भाई की बेटी है जो बैचलर पढ़ती है बुटोल में, वो उसके भाग में पड़ा था
तो हमारे हस्बैंड अंकल कह रहे थे मायके में ज़्यादा नहीं बैठने का, घर चली जाओ अपने घर में। घर नहीं गई गुरुजी महाराज, क्योंकि मायके वालों ने माँ बाप पालने के उसमें मुझे थोड़ा सा ज़मीन दी है, प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी और बढ़ा लिया मैंने, इसीलिए कर्ज भी लग गया है गुरुजी महाराज। मेरा बेटा कमा रहा है, हस्बैंड अंकल की कमाई ज़्यादा तो नहीं है। कल फिर एक मैसेज में था कि तेरे हस्बैंड अंकल की तरक्की अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल बेटे दोनों अच्छी तरक्की कर लेंगे तो मैं इधर का कर्ज उतार के दिवाली तक लगभग एक फार्म हाउस बनाने का सोच रही हूँ, एक दो भैंस बकरियां पालने के लिए, क्योंकि खेतों के लिए मल चाहिए होता है और घास भी आगे ही देते हैं। और बेटे की कवच बना ले, 7 दिन बुधवार गाय को हरी घास खिलाने के लिए एक सेवा दी है गुरुजी महाराज को। गुरुजी महाराज ने, हाँ गुरुजी महाराज, मैं 7 दिन गाय को घास काट के ही, मैं गाय फार्म इधर 2 हैं, तो गाय फार्म में घास की सेवा करूंगी गुरुजी महाराज। आपके आदेशों का पालन और मेरे बेटे का रक्षा कवच हो जाएगी तो मैं करूंगी गुरुजी महाराज, क्यों नहीं करूंगी। आप ही के आगे के जो आप ही के देन से तो सब कुछ मेरा अच्छा हो रहा है, उसके लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरक्की हो जाएगी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी को भी अपने सत्संग में, अपने उसमें ले लो गुरुजी महाराज। थोड़ी जिद्दी घमंडी है, उसको भी इस लाइन में ले लो ना गुरुजी महाराज। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी सत्संग में सत्संग सुने और उसके नियमों का पालन करे, मेरे परिवार भी करे। तो मेरे बेटा भी, बेटे की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज, अच्छा है, आज्ञाकारी है गुरुजी महाराज, कमा रहा है। बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। हम 4 परिवार हैं गुरुजी महाराज, 4 दिशा में है। एक अभी तो मेरी बेटी घर ही आ गई है, भांजी फूफू के साथ रहती थी, फूफू की बहू के साथ थोड़ा अनबन हो गई तो वो घर आ गई है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि मुझे भी साथ चाहिए था बुढ़ापे के लिए, वो ऑनलाइन ही पढ़ने के लिए बैठी है गुरुजी महाराज। बस उसकी जॉब लग जाती तो बस 4 चांद और लग जाते गुरुजी महाराज। मेरी बेटी भी अपने पाँव में खड़े होके दिखाए, अपने बल पे कमाए खाए, बस यही एक चिंता है गुरुजी महाराज, और कुछ चिंता नहीं है गुरुजी महाराज। बस उसकी जॉब लग जाए तो मेरी खुशियों में 4 चांद लग जाएगी गुरुजी महाराज। मेरी यही एक अरदास है कि बेटी की सरकारी जॉब लग जाए गुरुजी महाराज, बस। और आपका दिया सब कुछ है गुरुजी महाराज, सब कुछ है गुरुजी महाराज। और आहिस्ते आहिस्ते मेरे भी सब अच्छा हो जाएगा। आपने भी गाड़ी बंगला दुकान वेलस किए है गुरुजी महाराज, तो सब आस्ते आस्ते हो जाएगा गुरुजी महाराज। मेरी भी बस आज की सत्संग में ही विराम लगाऊंगी गुरुजी महाराज। जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, राज अंकल, लीला आंटी को, उनको भी पहले उनको ब्लेस कीजिएगा, फिर हमें कीजिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि उन्होंने ही एक उन्होंने ही की है मेरी सत्संग शेयर। सबसे मेहनत बड़ी उनकी लगी है, बहुत मेहनत करते हैं और मुझे इस काबिल बनाया कि सत्संग शेयर करने के लिए। मैं सत्संग करना भी नहीं जानती हूँ, क्या बोलती हूँ मुझे नहीं मालूम, तो कोई कोई डायरी पे नोट कर लेती हूँ समझ जाने, फिर भूल जाती हूँ तो याद करने के लिए। और उसके बाद जो बोलती हूँ ना गुरुजी महाराज, मेरे मन में मेरे भाव जो आते हैं वही बोलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज।